Hello friends, welcome again to yet another video lecture on English teaching and training. Dear learners, our today's topic is a poem that is The Listeners, written by Walter de la Mare. This particular poem is in Chinar first, that's in class 11th. Dear learners, as you know that in the part 1 of this video lecture we're going to take on the text of this very poem and we will go through each and every line and stanza of the poem, although this poem is only a single stanza consisting of 36 lines. So talking about this very poem, The Listeners, written by Walter de la Mare. Basically, when we talk about Walter de la Mare, he was also a short story writer. He has written some novels also, and one among them is Memoirs of Midgate in 1921, which is his best known work. And talking about his poems, The Listeners particularly, which was written in 1912, is ranked as the second most popular poem in English after Rudyard Kipling's If. तो अगर हम इस पोइम की बात करते हैं, यहाँ पे इस पोइम को भी काफ़ी सराहा गया है इंग्लिश लिटरेचर में, जहाँ अभी मैंने बात की कि रुडयार्ड किपलिंग की इफ़ जो पोइम थी उसके बाद दूसरे दर्जे पर है ये. दैट मीन्स इट इज़ समवट हैविंग ग्रेट पॉपुलरिटी इन इंग्लिश लिटरेचर. बात करते हैं इस पोइम की. जब हम इस पोइम को पढ़ेंगे, पहले ही मैं बोल चुका हूँ कि ये एक ही स्टैंजा है, बट इट कंसिस्ट्स 36 लाइन्स. एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द एटमॉस्फेयर इन दिस वेरी पर्टिकुलर पोइम, देयर इज सम काइंड ऑफ eerie atmosphere, fear inspiring, I should say strange and weird atmosphere in the poem. तो poem में जब हम इसको देखेंगे, जो atmosphere create किया गया है वो डरावना है. तो वहाँ पे हम जब देखते हैं कि एक पर्टिकुलर वहाँ पे ट्रैवलर है और वो एक जिसको कहेंगे एक रात में किसी घर के पास गया है, मूनलिट नाइट थी वहाँ पे, और वहाँ पे वो किसी को आवाज़ दे रहा है, लेकिन वहाँ पे भूतों का डेरा है वहाँ पे और कोई नहीं है. तो ये सारा कुछ इस पोइम में बोला गया है. और जब हम इस पोइम की बात करते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट द tone of this poem, I have already told you that the poem creates an eerie atmosphere there, fear inspiring atmosphere. और जहाँ तक हम बात करते हैं वॉल्टर डे ला मेर की, तो इसकी जो ज़्यादातर जो इसका राइटिंग है, चाहे शॉर्ट स्टोरीज़ की बात करें, चाहे इसकी पोइट्री की बात करें, या इवन फिक्शन जो वहाँ पे नॉवेल्स की बात करें, तो ज़्यादा तो ये बच्चों के लिए लिखता था. सो जब हम इस पोइम की बात करते हैं, इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग इंडीड. एक्चुअली जब हम इसको पढ़ते हैं, जब इसको फील करते हैं, तो हम एक अलग ही दुनिया में पहुँच जाते हैं. ऑल्दो दैट इज़ some kind of an weird, we can imagine a weird and fear inspiring atmosphere in the poem, but at the end of this very poem we can actually feel the skill, the great mastery of Walter de la Mare in creating and in craftsmanship of this very particular poem. तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट अस गो टू दिस वेरी पोइम. तो इस पहले पार्ट में, इस वीडियो लेक्चर का पहला पार्ट जो होता है, तो हम इसका टेक्स्ट लेते हैं पोइम का, एंड इन सेकंड पार्ट ऑफ दिस वीडियो वी विल गो फॉर पोएटिक एनालिसिस एंड एप्रिसिएशन ऑफ द पोइम. तो यहाँ पे डियर लर्नर्स, साथ में ही बोलना चाहूँगा, अगर आपको किसी भी वीडियो या इस पर्टिकुलर वीडियो के बारे में कोई भी कमेंट हो, सवाल हो, एक वीडियो आप अपनी पसंद का चाहते हो किसी पर्टिकुलर टॉपिक से, चाहे प्रोज, पोइट्री या ग्रामर से, प्लीज़ राइट in comment section. I will certainly come with a video on that very particular topic of your demand and choice. तो चलिए dear learners, बात करते हैं हम. We will talk about the text of the poem, that is The Listeners, written by Walter de la Mare. Now the poem starts like this. Is anybody there? Said the traveler, knocking on the moonlit door, and his horse in the silence champed the grasses of the forest's ferny floor.
And a bird flew up out of the turret above the traveler's head, and he smote upon the door a second time. "Is there anybody there?" he said. But no one descended to the traveler. No head from the leaf sill leaned over and looked into his grey eyes, where he stood perplexed and still. But only a host of phantom listeners that dwelt in the lone house then stood listening in the quiet of the moonlight to that voice from the world of men, stood thronging the faint moonbeams on the dark stair that goes down to the empty hall, hearkening in an ear stirred and shaken by the lonely traveler's call. And he felt in his heart their strangeness, their stillness answering his cry, while his horse moved, cropping the dark turf, 'neath the starred and leafy sky. For he suddenly smote the door even louder and lifted his head. "Tell them I came and no one answered, that I kept my word," he said. Never the least stir made the listeners, though every word he spake fell echoing through the shadowiness of the still house from the one man left awake. Hey, they heard his foot upon the turf, and the sound of iron on stone, and how the silence surged softly backward when the plunging hoops were gone. So dear learners, this is all about the text of the poem. जैसे कि मैंने पहले ही आपको बोल दिया है, ये जो poem है ये एक ही स्टेंजा है और इसी एक स्टेंजा में सारी poem लिखी गई है और इसमें 36 लाइन्स है. अगर हम स्टार्ट से यहाँ पे शुरुआत करेंगे टेक्स्ट के हिसाब से इस poem की, तो यहाँ पे एक ट्रैवलर है, कोई आया है घोड़े पे सवार होके एक मकान के पास, और ये जो मकान है या ये हवेली है तो ये एक मान लीजिए जंगल के साइड में है, जंगल के बीचों बीच है और रात का वक्त है वहाँ पे. और ये जो पोएम है ये एब्रप्टली स्टार्ट होती है. इसमें कोई आप जैसे और पोएम देखेंगे तो वहाँ पे एक स्टार्टिंग होती है, एक एंडिंग होती है, बॉडी होती है, लेकिन यहाँ पे एक एब्रप्ट स्टार्ट लिया गया है कि ट्रैवलर पहले ही से आ चुका है, ट्रैवलर उस दरवाजे पे पहले ही खड़ा हो चुका है, हमें ये पता भी नहीं चला ये कब निकला घर से, अब इसको जाना कहाँ है. सो दैट ऑल इंफॉर्मेशन इज नॉट अवेलेबल टू वी पीपल वे आर सडनली seeing that very traveler, he is smoothing on the door, that means he is knocking on the door. तो अचानक से ये पोएम स्टार्ट हो जाती है, अब्रप्ट बिगिनिंग वहाँ पे हो जाती है. लेट अस गो अगेन फॉर द टेक्स्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दिस वेरी पोएम. इज एनीबॉडी देयर? अगर आप ये देखेंगे ये वाला हिस्सा जो है वहाँ पे कोटेशन मार्क्स में डाला गया, ये किसके वर्ड्स हैं? ट्रैवलर के वर्ड्स हैं. तो वो मकान के दरवाजे पे रात का समा है, मून लाइट है, तो चांद की रोशनी वहाँ पे, चांदनी रात है, तो वो दरवाजे पे आ चुका उस बंगले के जो जंगल में है, जो एक डरावना माहौल वहाँ पे है, इनकी नामो निशान भी नहीं इंसानों का वहाँ पे, सिर्फ ट्रैवलर है, वो इस मकान के दरवाजे पे है और वो आवाज़ दे रहा है, इज एनीबॉडी देयर? तो सेड द ट्रैवलर नॉकिंग ऑन द मूनलिट डोर, क्योंकि मैंने पहले कहा रात का इस वक्त है, तो चांदनी रात की चांदनी जो है उसकी रोशनी है इस दरवाजे पे, तो इसको नॉक कर रहा है ट्रैवलर और कह रहा है कि कोई अंदर है. एंड हिज हॉर्स इन द साइलेंट चैम्पर द ग्रासेस ऑफ द फॉरेस्ट फर्नी फ्लोर, और उसका जो घोड़ा है, जो यानी ये घोड़े पे सवार आ गया था वहाँ पे, घोड़े पे सवार होके आया था वहाँ पे, एक गाड़ी में नहीं आया था, उसने अपने घोड़े को वहाँ पे छोड़ दिया था खुला, तो वो घास खा रहा था वहाँ पे. एंड अ बर्ड फ्लेw up out of the turret above the
ट्रैवलर्स हेड। और वहाँ पे क्या होता है, जब उसने नॉक किया, चिल्लाया वहाँ पे कोई अंदर है, तो वहाँ से शायद एक कोई पंछी था, कोई बर्ड था जिसने अपना घोंसला बनाया हुआ था, तो वो डिस्टर्ब हो गया रात के वक्त इस आवाज़ से, इस स्मूटिंग साउंड से, ट्रैवलर की आवाज़ से, तो वो वहाँ से भाग गया उसके सर के ऊपर से। एंड ही स्मूट अपॉन द डोर ए सेकेंड टाइम। और इसके बाद जब ट्रैवलर ने कहा कि कोई है तो आवाज़ नहीं आई, तो इसने दोबारा वहाँ पे स्मूट किया, नॉक किया, दरवाजे को खटखटाया। इज देयर एनीबॉडी देयर ही सेड। तो दोबारा उसने चिल्लाया, आवाज़ दी अंदर के लोगों को कि अंदर कोई है। यानी वो दरवाज़ा खोलने की बात वहाँ पे कर रहा था, किसी से जवाब लेने की बात कर रहा था, किसी को मिलने आया था वहाँ पे ट्रैवलर। तो इसने दोबारा वहाँ पे चीखा, चिल्लाया, आवाज़ दी अंदर के जो लोग थे उनको बुलाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वहाँ पे कोई आवाज़ उसकी आवाज़ का जवाब नहीं दे रहा था। बट नो वन डिसेंडेड टू द ट्रैवलर, no head from the leaf-fringed sill leaned over and looked into his grey eyes, where he stood perplexed and still. तो यहाँ पे क्या होता है, जब वो चीखता है, चिल्लाता है, कोई अंदर है, कोई अंदर है, और वो दरवाजे को खटखटाता भी है, लेकिन वहाँ उसको किसी की वहाँ जवाब किसी की आवाज़ सुनाई नहीं देती है, कोई उसकी बात का, कोई उसके सवाल का, कोई उसके चीखने चिल्लाने का वहाँ पे जवाब नहीं दे रहा है। और यहाँ पे वर्ड देखा गया है लीफ फ्रिंज्ड सिल, यानी वो जो खिड़कियाँ थी वहाँ पे, लीफ फ्रिंज्ड, दैट मीन्स वहाँ पे कुछ घास चढ़ी हुई थी, लीव्स वो उसकी खिड़कियाँ, ये जो मकान था उसकी वो जो क्रीपर्स प्लांट होते थे वो चढ़े हुए थे। यानी यहाँ पे दिखाया गया एक जो मैं पहले ही कह चुका, एक फेयर इंस्पायरिंग एनवायरनमेंट वहाँ पे क्रिएट किया गया। यानी वो पुराना मकान, बहुत टाइम से वो खिड़कियाँ खोली नहीं गई है, तभी तो ये जो क्रीपर प्लांट्स है, तो इन्होंने एक जाल बुन लिया इन खिड़कियों के आर पार, तो ये खिड़कियों के बाहर बिल्कुल इनको बंद कर दिया। तो इसका मतलब ये है कि बहुत वक्त पहले, बहुत से साल हो गए इस मकान में कोई शायद जिंदा इंसान नहीं रहता है कि जो इस मकान की सफाई करता या खिड़कियां खोलता। आगे फिर देखेंगे, where he stood perplexed and still, but only a host of phantom listeners that dwelt in the lone house then stood listening in the quiet of the moonlight to that voice from the world of men. अब अंदर कौन सुन रहा था? तो अंदर कोई इंसान नहीं था, जिंदा इंसान कोई नहीं था। They were phantom listeners. वहाँ भूतों का डेरा था, वहाँ भूत रहते थे, यानी जिंदा इंसान कोई नहीं था, वहाँ पे कोई आवाज़ देने के लायक ही नहीं था, क्योंकि जो अंदर रह रहे थे तो वो कौन थी? वो भूत थे, वो आत्माएं थी, वो जिंदा लोग नहीं थे। वो सुन रहे थे कि वो कह रहे थे कि ये जो आवाज़ है, इट इज़ फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ मैन, यानी जिंदा लोगों में से कोई आज हमारे इस दरवाजे पे आया है। तो वो सारे जो अंदर है, इससे हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं, वो कह रहे कि ये आवाज़ जो है जिंदा लोगों में से है, ये एक जिंदा इंसान की आवाज़ है। तो नेचुरली अल्टीमेट उनका जो जिंदा है उनका अपोजिट, तो वो दे आर डेड, दे आर ओनली फैंटम्स, वो वहाँ पे घोस्ट्स है। तो वो सुन रहे हैं इस आदमी की आवाज़ को, इस ट्रैवलर को जो चीख रहा है, जो चिल्ला रहा है कि मैं यहाँ पे आ गया हूँ। That goes down to the empty hall. आगे क्या बोल रहा है यहाँ पे? Stood thronging the faint moonbeams on the dark stair that goes down to the empty hall, hurrying in an air stood and shaken by the lonely traveler's call. तो वहाँ पे सिर्फ क्या है, आवाज़ का जवाब कोई नहीं दे रहा। वहाँ पे वहाँ भूतों का डेरा है, इस घर में, इस बंगले में भूतों का डेरा है सिर्फ। हाँ, अगर जा रही है, अंदर जा रही है, इस मकान के, इस बंगले के अंदर अगर कोई चीज़ जा रही है, दैट इज़ ओनली द मून बीम्स, द लाइट, द गोल्डन लाइट ऑफ द मून, वो अंदर जा रही है। और हॉल जो अंदर का जो कमरा दिखाई दे रहा है, लेकिन वहाँ पे कोई नहीं है। सिर्फ क्या दिखाई दे रहा है कि शायद अगर है तो सिर्फ भूत है, घोस्ट्स, और देयर आर फैंटम्स ओनली बाय द लोनली ट्रैवलर्स कॉल। और उसकी ट्रैवलर की जो कॉल है वो गूंज रही थी और मून बीम्स अंदर चली जा रही, यानी वो आवाज़ भी अंदर चली जा रही थी ट्रैवलर की कि कोई है वहाँ पे, और एक चीज़ जा रही थी, दैट इज़ द मून बीम्स, द लाइट ऑफ द मून, बट देयर वाज नो
आंसर टू द बोथ। तो खासकर जो ट्रैवलर की वहाँ आवाज़ थी, वो बुला रहा था किसी को, तो वो उसका जवाब उसको कोई नहीं दे रहा था वहाँ पे। एंड ही फेल्ट इन हिज हार्ट देयर स्ट्रेंजनेस, देयर स्टिलनेस आंसरिंग हिज क्राई, व्हाइल हिज हॉर्स मूव्ड क्रॉपिंग द डार्क टर्फ neath the starred and leafy sky, for he suddenly smoothed the door even louder and lifted his head. Tell them I came and no one answered, that I kept my word, he said. तो इसके बाद क्या होता है, तो ये जो इसका गोडा है ट्रैवलर का, तो वो थोड़ा मूवमेंट वहाँ पे करता है, घास खाते खाते आगे चला जाता है। टर्फ का यहाँ पे है, यानी वो जो घास थी वहाँ पे, हरी भरी घास थी, वो उसको खाते चॉम्प करते होते आगे चला जाता है। और यहाँ से जो ट्रैवलर है ये देखता है इस मकान की स्ट्रेंजनेस, यानी वो शायद तवक्को कर रहा था क्योंकि मेरी कॉल का जो मैं आवाज़ लगाऊंगा तो कोई ना कोई दरवाज़ा खोलेगा, कोई शायद उसका इंतज़ार कर रहा होगा वहाँ पर। लेकिन देयर वॉज ऑल स्ट्रेंजर्स, देयर वॉज ऑल फैंटम लिसनर्स। तो उसने अब क्या किया ट्रैवलर ने, कि उसने तीसरी बार अब ज़ोर से उसने दरवाजे को पीटना, नॉक करना शुरू कर दिया और ज़ोर से बोलना शुरू कर दिया, टेल देम आई केम एंड नो वन आंसर्ड दैट आई केप्ट माई वर्ड, ही सेड। और ये 2-3 खासकर सेंटेंसेस वहां बोले कि उनको बोल देना कि मैं आया था, लेकिन उन्होंने जवाब नहीं दिया। दैट आई केप्ट माई वर्ड, कि मैंने अपना वादा पूरा कर लिया। यानी यहां पे हमें लगता है कि शायद ट्रैवलर ने पहले किसी से वादा किया था कि मैं यहां पे आऊंगा, मैं उससे मिलने जरूर आऊंगा। लेकिन जब हम पोइम सारी भी पढ़ेंगे तो तब भी एक क्वेश्चन वहां पे रह जाता है, बिकॉज देयर इज एन eerie एनवायरनमेंट इन द होल पोएम, कि ये ट्रैवलर था कौन, ये मिलने किससे आया था, अगर वहां पे कोई जिंदा इंसान था वो गया कहाँ था, अगर एक से ज्यादा तो वो कहाँ गए थे, और क्या वो मर गए थे तो किस वजह से मर गए थे। तो ये सारे सवाल बिल्कुल आपको इनके जवाब नहीं मिलेंगे। ये जो पोएम है अब्रप्ट स्टार्ट है, अब्रप्ट एंडिंग हो जाती है वहां पे, लेकिन ये जो एक तशनी रहती है दिल में, एक eerie सा एनवायरनमेंट बना के जो वॉल्टर डेला चला जाता है वहां पे, दैट इज द ग्रेटनेस ऑफ दिस वेरी पोएम। तो आगे जाएंगे यहाँ पे, never the least stir made the listeners, though every word he spake fell echoing through the shadowiness of the still house from the one man left awake। इसके बाद ये जो आवाज तीसरी बार इसने चिल्लाया, ट्रैवलर ने चीखा कि मैं आ गया हूं, मैंने अपना वादा पूरा कर लिया, उनको बताना कि उन्होंने जवाब नहीं दिया था। ये वर्ड से इसका चीखना, जोर से चिल्लाना, तो इसका भी कोई जवाब नहीं आया। इसके जो ये अल्फाज थे, इसकी जो ये अल्फाजों, इसकी जो ये साउंड थी, ये सिर्फ वहाँ गूंज रही थी उस जगह में, उस बिल्डिंग के अंदर, क्योंकि वहाँ पे खालीपन था तो इको कर रही थी वहाँ पे, लेकिन जवाब किसी ने नहीं दिया। इसके बाद क्या होता है, ए दे हर्ड हिज फुट अपॉन द स्टिरअप एंड द साउंड ऑफ iron on stone, and how the silence surged softly backward when the plunging hoofs were gone। इसके बाद क्या करता है ट्रैवलर, वो जल्दी से अपने घोड़े के पास जाता है और वो घोड़े पे चढ़ जाता है। वहाँ पे वर्ड स्टिरअप, यानी जहाँ पे हम घोड़े के जो दोनों साइड में वो जहाँ पे हम अपने पैर रखते हैं, उसके जीन में जो वो बना होता है पैरों के, तो वो उसमें अपने पैर रख देता है और चला जाता है तेजी के साथ। और यहाँ पे है द साउंड ऑफ आयरन ऑन स्टोन, क्योंकि घोड़े के जो पैर थे उनमें नाल लगी हुई थी, तो वो जो लोहे का बना होता, तो वो तेजी से इतना भागा घोड़ा भी वहां से, ड्यू टू द एनवायरनमेंट, ड्यू टू द नो आंसर फ्रॉम दैट पर्टिकुलर प्लेस, क्योंकि उसका मालिक घबराया हुआ था शायद, तो उसने अपने घोड़े को इतना तेज भगाया वहां से, निकलने की कोशिश की कि उस घोड़े ने इतना तेज भागा तो उसके जो नाल वो पत्थरों पे गिर रहे थे और एक साउंड निकल रहा था भागने का साउंड, जो उसका मालिक था। एंड
the horse also, he was also somewhat he got feared due to that very particular place and the atmosphere at that very particular place. तो वहाँ पे ये दोनों वहाँ पे भाग रहे हैं. अब मालिक जो है, ट्रैवलर जो है, अपने घोड़े पे तेजी से भाग रहा है और दोबारा जो इससे ट्रैवलर के आने से पहले जो वो मकान, वो बंगला जो इस जंगल में था, सुनसान था, वीरान था, वहाँ पे कोई शोर शराबा नहीं था, वहाँ पे सिर्फ एक ही चीज़ बसेरा कर रही थी. तो वो क्या थी? वो एक अजीब डरावना किस्म का वहाँ पे समा था. तो दोबारा वही आने लगा, दोबारा वही साइलेंस, वही खामोशी, वही डरावनी खामोशी वहाँ पे दोबारा आने लगी उस बंगले के, उस घर के इर्द गिर्द. क्योंकि जब एक इंसान जो ट्रैवलर था, जिसकी अभी चीखें वहाँ पे गूंज रही थी, जिसकी आवाज़ अभी गूंज रही थी, जिसने इस साइलेंस को थोड़ा डिस्टर्ब किया हुआ था, वो अब भाग चुका है वहाँ पे. और दोबारा से वही खामोशी, वही डरावनापन, वही समा, वही डरावना वहाँ पे एटमॉस्फेयर दोबारा वहाँ पे सर्जेड बैकवर्ड्स, वो दोबारा आ गया वहाँ पे. यानी बिल्कुल वहाँ पे अंदर अब भूतों का वही डेरा है और बाहर से खामोशी है. So dear learners, it was all about the text of the poem The Listeners by Walter de la Mare. In part second of the video lecture of this poem, that is The Listeners, we will go for the critical appreciation and analysis of the poem. Till then, take care, have a nice time, subscribe the channel, share the channel. Goodbye.